Here, how are you student? Now today we will start chapter Force and Laws of Motion of class 9th, and let's start. And now we have to start the topic force. We have to know what is force before we have to look after these pictures. ये हमारे पास पिक्चर है. First picture is here. The boy is keeping the object trolley away from his body by exerting some force. When the object is away from the body, it means the force which is acting on it, it is push. And the second case, if we draw the drawer toward body, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेंगे तो that means we have to apply some force to bring the object toward the body. इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे? पुल. तो पुश और पुल both are related to the force. Related to the force. It means we can say push or pull is known as force. And that force, first one is here, when we push the force of an object, push type of force apply on an object, then the object will be in motion. When we pull the drawer, then it will be in motion, from rest to motion. And the third one is, here is the hockey stick hit the ball forward. Ball is at rest, it means from rest the object will be in motion. If here is the motion of the ball, ball is moving in this direction, and the one player will come and hit this ball, that means direction will change. Here the force is applied on an object and the direction is completely changed. It means force change the state of an object. State of an object means from rest to motion, or from motion to rest. And third one, you said that change the direction. Change the direction. And now here the spring is taken. This is the size of the spring, and when we stretch means when we stretch the spring, then automatically its length will increase. The change is shape. Here the spring shape of the spring is completely changed. It means how the shape of the spring is changed. कैसे change हुआ? By applying some force. Which force? Mean drawn, stretched. And here is the ball, which the original shape of this ball is sphere, but we apply some force, exert some force toward each other, means press it, then it compressed and the shape is changed. So simply force is produce motion. Force क्या करता है? Motion produce करता है. कौन सा प्रोड्यूस करता है? कि रेस्ट ऑब्जेक्ट को या मूविंग ऑब्जेक्ट को किस पर लाता है? रेस्ट पर लाता है. मीन मोशन ऑन द रेस्ट ऑब्जेक्ट. जो रेस्ट ऑब्जेक्ट होता है उस पर मोशन ले आता है, और जो ऑब्जेक्ट मूविंग होता है उसको किस पे ले आता है? रेस्ट पर लगता है. बाय अप्लाइंग सम फोर्स. मीन इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, व्हेन वी ट्राइंग टू स्टॉप इट, it means applying some force. The moving object will be at rest by applying some force. If the object is rest, it is rest, and when we apply some force, it will be in motion. It will move from one point to another point. It means force change the position of an object from rest to motion. Motion rest से motion में आ सकता है, और या motion से किस में आ सकता है? रेस्ट में आ सकता है. फोर्स का काम क्या है? ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना और मोशन से रेस्ट में लाना, और साथ में उसकी डायरेक्शन भी क्या करता है? चेंज करता है. क्या करता है? उसकी डायरेक्शन भी चेंज करता है. और दूसरा क्या करता है? उसकी शेप चेंज करता है. चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन. फोर्स इज आल्सो चेंज इन डायरेक्शन. एंड थर्ड वन इज चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप. These are the characteristics of the force. And also when an object is moving a given speed, किसी एक स्पीड से मूव कर रहा है, अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ानी है तो we have to apply force. Which force? Push या pull? We have to apply which one? Either push or pull. This depend upon the condition of motion. अगर मान लो, it means an object is moving with some speed, moving with
some speed या given speed, it means speed can increase, speed can change, speed can change. Here is change mean, it means speed can be increased or can be decreased by applying force. And now what are these means? The result which you have find means change the magnitude of the speed of an object. क्या कहा है कि स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं और स्पीड को घटा सकते हैं, किसके द्वारा? बाय अप्लाइंग सम फोर्स। ये इफेक्ट का फोर्स पहला है। दूसरा, कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो अप्लाई फोर्स तो किस पर आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट किस पर है? मोशन में है, तो किस पर आ जाएगा वो? बाय अप्लाइंग सम फोर्स टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, इट विल बी रेस्ट पर आ जाएगा। सेकेंड, चेंज द डायरेक्शन, विच है ऑलरेडी टोल्ड यू। The change in shape means like spring. Example, spring or ball or a rubber ball. When we apply force on the rubber ball, it compress, changes its shape. And spring, when we stretch, the shape of the spring will change. So that means force change the following characteristics. And type of force. First is balance force. What? Balance force and unbalanced force. What is balance force and what is unbalanced force? Before knowing what is balanced force or unbalanced force, we have to check it. Here the two boys push this table or the object. Here this is the force which is applying in this direction. It means one force is applying, the boys are applying force in this direction. Here is the in this direction, means here is the this force is applied by two boys, and this F2 is the force, either we can say frictional force or the weight of the object. Both, if we will check the direction, here is from left to right, here is right to left, means both are in opposite, and the length of this arrow is same. Length of arrow is same. If length of arrow is same, that same length of arrow means applying force. Length of arrow means force from left to right which is exerted by boys on an object. वो boys ने किसके ऊपर लगाया है? ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है. And the same frictional force or we can say weight of the object. Both are equal in magnitude. दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं. जब आपस में बराबर है तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. और बट अगेन ही अप्लाई मोर फोर्स, उसने क्या लगाया? और ज्यादा फोर्स लगाया. तो इसका मतलब एरो क्या हो गया? थोड़ा सा और बढ़ गया. इट मीन इंक्रीज फोर्स. फोर्स F1 बढ़ गया, तो सिमिलरली F2 भी इसका मतलब बढ़ गया. बट द लेंथ ऑफ दिस टू फोर्स, इफेक्ट ऑफ दिस टू फोर्स आर सेम. हेयर इज +5 न्यूटन, हेयर इज -5 न्यूटन. तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज 0, नो नेट फोर्स. नेट फोर्स इज 0. इट मीन द ऑब्जेक्ट इन सेकेंड केस, in the first case or in second case, the object will not move. It means when object will not move and the net force equal to 0, तो इसका मतलब that force is known as balanced force. Here is when the resultant force of two or more object, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट का अगर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 0 होगा, तो that is the balance force. Balance force means net force is equal to 0. And two equal force act on an object in different direction. It means two equal force. One force is acting from left to right and other force is from right to left. If both are same in magnitude, same magnitude. अगर दोनों का magnitude same है, but direction is different. अगर direction क्या है? Different है. Direction is different. So that means we can say the balance force, it is balance force. And in case of balance force, the object will not move. Balance force में object move नहीं करेगा. So second type of force is unbalanced force. Now here again that picture, here the two boys are again apply more and more force, exert more force. जब उन्होंने फोर्स ज्यादा लगाया तो ये जो फोर्स ज्यादा लगाया, ये वाला फोर्स, दिस फोर्स, ये क्या हो गया? It means the force which is exerted by या which is applied by two boys. दो बॉय ने फोर्स लगाया which is F1 and we are saying that it is 8 न्यूटन. और फिर दूसरा फोर्स लगा किधर से? मीन्स इन अपोजिट डायरेक्शन. ये फोर्स दूसरा लगा, दिस इज F2 इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर आप देखेंगे तो दिस फोर्स
is F1 is comparatively larger than the F2. If we are assuming F2 is 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन है, दिस इज 8 न्यूटन और ये क्या है 5 न्यूटन है। तो इसका मतलब हमारे जो है जो 2 बॉयज जो फोर्स लगाया वो कंपैरेटिवली ज्यादा था। कितना ज्यादा था? 8 उन्होंने लगाया, 5 फ्रिक्शनल फोर्स था, तो कौन सा फोर्स ज्यादा हो गया? 3। ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया किधर की तरफ? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब जिधर की तरफ फोर्स ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। हेयर द फोर्स इज अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज कंपैरेटिवली मोर देन द फ्रिक्शनल फोर्स और द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कितना ज्यादा है? दिस फोर्स इज मोर देन द फ्रिक्शनल और द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये वाला फोर्स ज्यादा था, इसीलिए किधर की तरफ जाता? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देयरफॉर दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन द फोर्स इज मोर, द ऑब्जेक्ट विल मूव। इट मीन इसका मतलब ये हो गया जिधर फोर्स ज्यादा लगेगा, जिधर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे एंड द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन, और वी कैन से द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 फोर्स हैं, दोनों क्या है? अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, एक 8 का एक 5 का, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स इसका 0 नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट 0। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा तो इसका मतलब 2 फोर्स क्या है? अनइक्वल है। अनइक्वल मीन्स ऑब्जेक्ट विल मूव। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स लगाने पर इफ द ऑब्जेक्ट विल मूव दैट मीन अनबैलेंस फोर्स। इन केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट विल मूव। Now check it. When the resultant force of 2 or more forces is not equal, 2 या 2 से ज्यादा फोर्स का अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर क्या होगा? 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, तो दैट मीन अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स अगर 2 अनइक्वल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन, एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, दोनों फोर्स हैं, दोनों अनइक्वल फोर्स हैं, नॉट इन मैग्नीट्यूड, सेम नॉट सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, नॉट सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज नॉट सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट। जब सेम मैग्नीट्यूड ना हो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो ऑब्जेक्ट विल मूव। ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव करेगा, और जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा दैट फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। इसी के बेस पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन एक्चुअल में आपने पढ़ा है इन मोशन चैप्टर में। इट मीन व्हाट इज मोशन? बिफोर एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज मोशन? इट मीन मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। मोशन मीन चेंज इट्स पोजीशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में या टाइम के रेस्पेक्ट में, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन देन दिस इज नोन एज मोशन। नाउ हियर वी हैव टू चेक इट। ये कैरम बोर्ड है, दिस इज द स्ट्राइकर और ये कॉइन्स है। हियर इज द कॉइन्स, हियर इज कॉइन। चेक दिस एक्टिविटी प्लीज। अब यहाँ पर देखना बेटे, ये स्ट्राइकर है, दिस इज द स्ट्राइकर विच इज एट प्रेजेंट इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पर है, एंड दिस इज द कॉइन, कॉइन इज आल्सो एट रेस्ट। ये जो कॉइन है और ये जो स्ट्राइकर है बोथ आर एट रेस्ट, ये रेस्ट पर ही रहेंगे। एंड नाउ ही अप्लाई फोर्स ऑन दिस स्ट्राइकर एंड दिस स्ट्राइकर विल स्ट्राइक टू द कॉइन। स्ट्राइकर ने कॉइन को स्ट्राइक किया, लेकिन कॉइन पहले रेस्ट पर थे एंड दे विल फॉल डाउन और दे विल बी इन मोशन। ये किस में आ जाएंगे? मोशन में आएंगे। कब आए मोशन में? आएंगे जब ये स्ट्राइकर इन कॉइन को स्ट्राइक करेगा। इट मीन ये फोर्स जो लगा, दिस इज द अनबैलेंस फोर्स विच एक्टिंग ऑन दिस कॉइन, इन कॉइन में एक्ट किया, जिसकी वजह से कॉइन विल बी इन मोशन, कॉइन विल बी मोशन। लेकिन ये रेस्ट पर ही रहना चाहते थे, बट इस स्ट्राइकर ने इनको किस में ला दिया? मोशन में ला दिया। जब इट मीन एवरी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एंड नाउ सेकंड इज, हियर इज अ 5 rupees coin, here is a, this is 5 rupees coin, and here is card and glass, and glass both are rest. This card and this coin is at rest. When we strike this card or the paper, then automatically the paper
or the card will move forward. If this card will move forward and the coin will immediately fall inside the glass, it means the card will be in motion, but this coin want to remain at rest. It will just fall down because we apply force on this card. Same as when we apply this force on this coin, it means this coin will move and this one coin will move and that will be fall down. That will be fall down in downward direction. This is known as first law of motion. It means what is the first law of motion? कि हर कोई object, every object, हर कोई object means like this object. If I have example दे, if this is a ball is on the surface, on the floor, this ball will be at rest. कहाँ पर होगी? रेस्ट पर है. And this ball will be remain at rest. कब तक रहेगी रेस्ट पर? Until, जब तक इस पर कोई किक नहीं मारेगा. Until no external unbalanced force act on it. It will be at rest. When unbalanced force act on it, it will be in motion. वो किस पर होगा? मोशन होगा. And a ball is moving. A ball is moving. The ball will be in motion. बॉल हमेशा किस में? मोशन में रहेगा. Always will be in motion. कब तक मोशन में रहेगा? Until no external force act on it. जब तक इस पर कोई external force रोकने के लिए नहीं लगाएंगे, ये रुकेगी नहीं. अब वही आप कहोगे जी क्या नाम है, द बॉल तो जब सरफेस पर फ्लो मूव करती है तो रुक जाती है थोड़ी देर बाद. यस, क्यों रुक जाती है? बिकॉज सम फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉल पर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉल थोड़ी दूर के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है. इट मीन सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दिस बॉल. ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स द ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, an object remain in the state of rest. हर कोई ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? रेस्ट पर ही रहेगा या मोशन में रहेगा. हर कोई ऑब्जेक्ट, एंड एनी ऑब्जेक्ट विल बी आइदर इन रेस्ट और इन मोशन. कब तक? अगर वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, या मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा. मीन्स यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन until no external unbalanced force act on it. जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, द ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा. इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? एनर्सिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एनर्सिया. तो व्हाट इज एनर्सिया? एनर्सिया इज द डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो इज दैट मीन व्हाट इज एनर्सिया? एनर्सिया हमेशा किसको मेजर करता है? मास को मेजर करता है. किसको मेजर करता है? मास. एनर्सिया मेजर मास. हाउ? इट मीन फर्स्ट लॉ क्या करता है? देखिए, फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स. इसी फर्स्ट लॉ के बेस पर एनर्सिया बनाया, एंड दिस एनर्सिया इज मेजर द मास. इट मीन मोर मास तो मोर एनर्सिया, लेस मास लेस एनर्सिया. जितना कम मास होगा एनर्सिया भी उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा मास होगा एनर्सिया भी उतना ज्यादा होगा. इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एनर्सिया. जो पहला लॉ ऑफ मोशन है, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एनर्सिया. एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ एनर्सिया? इट मीन सेम फर्स्ट लॉ. इट इज द नेचुरल टेंडेंसी. इट इज द नेचुरल टेंडेंसी. It is the natural tendency of an object to resist. Natural tendency of an object. Object की एक natural tendency, एक natural point होता है, उसके अंदर एक natural characteristic होती है कि object to resist the change of the state of motion और rest, कि वो अपनी state of rest को और state of motion को चेंज करने की अपनी एक नेचुरल उसकी टेंडेंसी होती है. इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एनर्सिया. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एनर्सिया. दिस लॉ मीन्स लॉ ऑफ एनर्सिया, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन. उसके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है? अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए रेसिस्ट करता है. और एनर्सिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर. आपने बताया अभी, डिपेंड ऑन मास. More mass, more inertia, और vice versa. Vice versa mean less mass, less inertia. It mean inertia is directly proportional to mass. Inertia जो है directly proportional to mass. For example, if I take 1 rupees coin, और क्या ले लिया? 10 rupees coin. Which has more mass? 10 rupees coin has more mass, therefore it has more inertia. इसका मतलब 10 रुपए के सिक्के का मास
ज़्यादा है तो इसके अंदर 10 रुपये के क्या इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब एन एम्प्टी ट्रक एंड लोडेड ट्रक, एक भरा हुआ ट्रक और एक खाली ट्रक है, दोनों में किसका इनर्शिया ज़्यादा है? एम्प्टी ट्रक का मास कम है, लोडेड ट्रक का मास ज़्यादा है, तो इट मीन विच हैज मोर इनर्शिया? लोडेड ट्रक हैज मोर इनर्शिया एज कंपेयर टू एम्प्टी ट्रक। एंड नाउ वन एग्जांपल इफ यू विल टेक क्रिकेट बॉल, वन इज क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल ले ली और दूसरा क्या ले लिया? रबड़ बॉल, कॉस्को रबर बॉल। इट मीन विच हैज मोर एनर्जी? क्रिकेट बॉल और रबर बॉल। रबर बॉल हैज लेस मास, cricket ball has more mass, therefore cricket ball has more inertia. And what is inertia law? Law of inertia, what is the law of inertia? The natural tendency of an object to resist the state of motion or rest. Is it clear? To resist, natural tendency of an object. And momentum, mass, what is mass? Here is mass, this is object, it means it contains some substance, some matter, इसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस, कुछ ना कुछ मैटर है, जो इसके अंदर मैटर, जो इसके अंदर सब्सटेंस है, उसी मैटर, उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास। इसका मतलब जो भी इस सब्सटेंस के अंदर, जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मैटर है, उस मैटर को हम मास कहते हैं। और यही मास मेजर करता है क्या? एनर्शिया। यही मास क्या मेजर करता है? एनर्शिया। तो इट मीन व्हाट इज मास? मास द अमाउंट ऑफ मटेरियल या अमाउंट ऑफ मैटर दैट कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मटेरियल, जितना मैटर है, उसी को हम मास कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई? बिकॉज इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स ओनली क्वांटिटी। मोमेंटम हम कहते हैं, देखिए ध्यान से, एक खाली ट्रक है, एक भरा हुआ ट्रक है, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, तो जब ये स्ट्राइक करेंगे किसी वॉल पर टकराए, जब किसी वॉल पर टकराए तो किसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है? लोडेड ट्रक ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जितनी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इसका मतलब जिसने नुकसान पहुंचाया वो क्या है? उसका मोमेंटम ज्यादा है। पावर ऑफ मोशन, एक किसी टू पर्सन है, वन इज ऑफ जिसकी जो स्ट्रेंथ जिसके अंदर कम है, ताकत कम है, लेस स्ट्रेंथ है, एक पर्सन के अंदर ज्यादा ताकत है। दोनों ने क्या करा? किसी को थप्पड़ मारा, तो इसका मतलब जो स्ट्रेंथ कम वाला था उसका असर कम रहेगा और जिसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा थी उसने थप्पड़ मारा, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि पावर किसके अंदर ज्यादा थी? मोर स्ट्रेंथ के अंदर। तो इसके अंदर मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? जिसके अंदर ज्यादा पावर होगी। जिसके अंदर क्या होगी? ज्यादा पावर होगी, उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब लोडेड ट्रक और एम्प्टी ट्रक दोनों में मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? लोडेड ट्रक का। रीजन क्यों? मोर मास। देखो स्पीड दोनों की सेम है, स्पीड इज सेम। जब स्पीड सेम है तो मोमेंटम लोडेड ट्रक का ज्यादा होगा। बाय यूजिंग फार्मूला, कैसे देखिए, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ध्यान से देखिए बेटे, इट इज नोन एज पावर ऑफ मोशन। तो इट मीन व्हाट इज मोमेंटम? पावर ऑफ मोशन इज नोन एज मोमेंटम, विच हैज मोर। जो हम जितनी ताकत से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगाते हैं, उसके अंदर क्या होगी? जो ज्यादा ताकत वाला होगा, इसका अंदर उसको फोर्स लगाएगा तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी से मूव करेगा। इट मीन मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ मोशन की शक्ति। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी और इसका फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू एम वी। तो यूनिट ऑफ ये तो फॉर्मूला हो गया, P इज इक्वल टू एम वी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? एम वी। एम इज किलोग्राम, V is meter per second. So this is the power of unit of momentum. Unit of momentum is kilogram meter per second. How? Mass की यूनिट किलोग्राम। देखिए जरा ध्यान से, here is mv, unit of mass is किलोग्राम। इस मास की यूनिट किलोग्राम हो गई और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला इज m.v।
and now this is, and now we will study next class में हम पढ़ेंगे second law and third law of motion. Please keep it in mind and revise properly. Thanks for today.